this accumulation switches to, जो stress test आप देख रहे हो वो हम नहीं कर रहे. We are solving this question as a normal question right now. So for son's higher education after 15 years, a client estimates a lump sum required of rupees 50 lakh and further 30 lakh for son's business. ये क्वेश्चन मिला सबको? सर कहाँ पे है, which page? Okay. Now moving further, once again on to the goal. Higher education after 15 years, estimates a lump sum required of 50 lakh and further 30 lakh for the son's business establishment after 3 years. You devise an investment strategy whereby equivalent funds are available in liquid scheme after 15 years. This involves starting an SIP in equity scheme immediately, increasing such investment by 20% after every 3-year period, and thus continuing for total 12 years. At the end of 12 years, 30% of the outstanding equity fund corpus every year is redeemed and invested in liquid fund until the entire equity fund is redeemed after 15 years. What equity SIP amount is required immediately? फिर स्ट्रेस टेस्ट वाला पार्ट हम छोड़ दे रहे, बट दिस जो पहला पोर्शन है दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग पोर्शन. ऐसा हमने अभी तक किया नहीं है. राइट, सो जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस अगेन एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग इट. सबसे पहले रिक्वायरमेंट को टाइमलाइन पे ले लेते हैं. सो इट सेज दैट टुडे वी आर एट 0. चलो फर्स्ट रिक्वायरमेंट से ईयरली रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये क्वेश्चन में शांति है. यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उसमें काफी ट्रिक्स रखे हुए. सो 0 से लेके से सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एट द एंड ऑफ 15th ईयर. ठीक है, एंड lump sum required of rupees 50 lakh. Now is it then cost or current cost? Then cost. It is then cost. then cost ही है. So 50 लाख मैंने यहाँ पर रख दिए, then cost ही है, शांति है. And further rupees 30 lakh for son's business establishment 3 years later. तो इसके 3 साल के बाद, so that is after 18 years from today, further requirement is 30 lakh. चलो ये portion तो clear हो गया. Now one thing is very clear that we have to start making investments and we have to achieve the corpus. तो corpus मेरा जो है that should be found here. ठीक है, so this is the corpus needed to meet the expenses. ठीक है, वो ला लेंगे, that is easy for us. करना कुछ नहीं, 50 lakh तो वहीं पे है. I would just find out present value of 30 lakh. That is the only one step I have to do. कर लेंगे. अब उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उसको भी टाइमलाइन पे हम सेट करते हैं, बिकॉज दैट इज द ट्रिक ऑफ इन दिस क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग ट्रिक इन द क्वेश्चन. You devise an investment strategy whereby equivalent funds are available in liquid fund after 15 years. तो 15th year के एंड पे सब कुछ लिक्विड में आ जाएगा. That is very clear. This involves starting an SIP in equity scheme immediately, increasing such investment by 20% after every 3-year period and thus continuing for total 12 years. ठीक है, चलो तो 12 साल तक तो हम SIP करने वाले हैं. And wherein अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये 3-3 साल के ब्लॉक में चेंज हो रही है. सो फॉर फर्स्ट 3 years कांस्टेंट अमाउंट, देन इट विल इंक्रीज बाय 20% for further 3 years and then it's going to go on. तो टोटल हम इसको 3-3 साल के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं. सो 3 years, then we have got 6 years, then 9 years and finally 12 year तक SIP करनी है. Then after 12 years what is happening? 30% of outstanding equity fund corpus every year is redeemed and invested in liquid fund. ठीक है, सो 12th पे स्विच होगा, फिर 13 पे भी स्विच होगा, 14 पे भी स्विच होगा एंड लास्टली एट 15 वी वुड हैव एवरीथिंग इन लिक्विड. बराबर. सो ये पूरे क्वेश्चन का पैटर्न हुआ. डन? यस सर. Let us find out corpus. So 50 lakh तो है ही है.
So now we have to find out only one thing, that is present value of 30 lakh. Means 18th year के end पे उसको मुझे 15th year के end पे लाना है. So FV is equal to 30 lakh. N is equal to 3. अच्छा मुझे लिक्विड का रेट बताओ क्या है? 6%. 6%, and let us find out PV. 25,18,857. 25,18,857. Correct. So this is the requirement at the end of 15th year, once we are entire investment arrangement is getting over. ठीक है, so ये 15th के end पे हुआ. Now I'll add 50 lakh which is required at the end of 15th year. So total मेरा requirement कितना है? How much is my total corpus? So it is 75 lakh 18,857. So whatever investments I make, it is to achieve this amount. Correct? चलो ये मेरा टारगेट हो गया या कॉर्पस हो गया. Is that true? चलो, anybody confused? Now can I go backwards? Once again the question is that कि मुझे investment करना है, तो can I go backwards? Can I find out investment amount by going backwards? No. No. PV वो पुराना कैलकुलेशन है. तो मुझे फिर से फॉरवर्ड ही आना है. And once I am coming forward, मुझे क्या करना है? अज्यूम करके ही करना पड़ेगा. ठीक, तो अज्यूम करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, हम पहले एक बार सेट कर लेते हैं कि कौन से पीरियड में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है. सो इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं पहले 1000, राइट. सो सेकंड पीरियड मींस ये पीरियड हो गया. फॉर इनिशियल 3 इयर्स वी विल बी इन्वेस्टिंग 1000. फिर सेकंड पीरियड में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? दैट इज ग्रोइंग एट 1200. 20. That means यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 1200 इन द सेकंड पीरियड. थर्ड पीरियड में 1440. 1440 एंड लास्ट पीरियड में 1728. 1728. Perfect. So this is how my investment is going to go on. ये भी क्लियर हो गया ना? So growing annuity नहीं है. It is not growing annuity. Apparently, if it looked like a question of growing annuity, it's not, because it isn't growing yearly. 3 साल में एक बार हम growth दे रहे हैं in the investment amount. Clear यहाँ तक सबको? Yes. Okay. Perfect. तो अब तो हमारे लिए I think question बहुत आसान हो गया. आधे तक मैं solve कर रहा हूँ, end आप लेके आओगे. चलो पहले 3 साल का हम करते हैं. PMT is equal to 1000. Beginning mode. N is equal to 36. I by Y is MNR, monthly nominal rate of, चलो rate क्या है अपना इक्विटी का? 12%. 12%. And let us find out future value. $43079. All of us having same answer. ठीक लग रहा है? 43079. Yes. चलो, so ये common answer आ गया. Move further. थोड़ा स्पीड में ले रहे हैं, फिर हम ब्रेक कर देते हैं. Then I'll give time to everyone to reach to a particular level. ठीक है, अब इसको मैं क्या ले लेता हूँ? This is to be taken as PV and बहुत आसान हो गया. PMT is equal to 1200. बोथ माइनस करिएगा, साइन में गड़बड़ नहीं, दोनों आउटफ्लो है मेरे लिए. N is equal to 36. I by Y is same rate as you calculated the first part, and let us find out FV. 103,602. फिर से मंदिर भाई. 103,602. I think थोड़ा चेक करो ना फिर. ना सर, 111218. अच्छा, मेरे उसमें वो वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ. करेक्ट. 112217. सुपर. 18. हाँ, करेक्ट. चलो, नाउ फर्दर दिस अमाउंट इज टेकन एज पीवी एंड माइनस में अब लेते हैं पीएमटी, दोनों माइनस. देन कितना था? 1440 था ना? यस. 1440. N is equal to 36. I by Y is equal to same rate, and let us find out FV.
अब आप देखो पढ़ने में 219692 इतना कॉम्प्लेक्स लगा था हमें, while reading it sounded really complex. यार ऐसा कैसे करेंगे, but in fact this is happening to be really easy, isn't it? चलो FV 219692 ठीक है, and then once again I'm taking the same amount as PV. PMT is equal to कितना था लास्ट में? 1728. 8. Perfect. दोनों माइनस, I by Y is same MNR, and let us find out FV considering N रह गया is equal to 36. Find out FV. 383. 383093. Done. Perfect. So this is the amount which is at the end of 12th year. ठीक है, चलो अब गिविंग यू सम टाइम, अब करना क्या है हमें? 12th ईयर के एंड से ब्रेक करना है, क्या रेशियो में? 30% और 70%. 30-70. ठीक है, सो लाइक वाइज आप 12th के एंड पे करो, 13th के एंड पे करो, 14th के एंड पे करो, और मुझे 15th के एंड पे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा वो बताओ. तो अब आपका कैलकुलेशन खत्म हो चुका है, तो मुझे बताओ वो फाइनल एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 15th ईयर कितना हुआ? सो दैट इज 4,97,610. दिस इज द एक्यूमुलेशन. ये सब कुछ करने के बाद एट द एंड ऑफ 15th ईयर दिस इज द एक्यूमुलेशन. अब सिंपली हम ऐसा रख सकते हैं कि I could accumulate 4,97,610 with initial amount of 1,000. With initial amount of 1,000. 1000. तो अगर मेरा रिक्वायरमेंट 75 लाख है, 75,18,857 है, तो कितना अमाउंट मुझे स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट में 15110. it is 15110. This is the amount with which we are going to start, and then subsequently वही 3 साल के बाद ये अमाउंट ग्रो होती जाएगी. This is not the constant amount for all the years. This will increase, but हाँ ये start amount है. Clear? Yes sir. Let's start with the concept of insurance cover requirement. आगे भी हम 18 क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं. There is one more इंटरेस्टिंग है, बड़ा भी है, तो ले लेते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी है और बहुत काम के. इंश्योरेंस के क्वेश्चन तो हमको एग्जाम में पास करा देंगे. सो यू एस्टिमेट लाइफ कवर फॉर योर क्लाइंट हु इज 32 years old, has 25 lakh in loan liability, has a non-working spouse of age 30 and children of age 7 years and 5 years. Additionally, the client wants higher education for each of his children, rupees 30 lakh after 15 years and marriage expenses of 15 lakh after 20 years. Both are considered at current cost. चलो, तो ये क्लियर ही हो गया कि जो 30 lakh 15 lakh जो दिया था at current cost है. Their present household expenses are rupees 50,000 per month, which includes housing loan EMI of 15,000. The client consumes per month rupees 8,000 on self. You additionally provide for 30 years living expenses after the spouse's age of 55 years, considering she would require only 60% of expenses thereafter. He has an insurance cover of 40 lakh presently and his financial investments are rupees 15 lakh. The additional quantum of life insurance cover is, assume कि expenses का जो inflation है वो 5% है and the claim amount will be invested at the rate of 8%. So read the question precisely. कुछ confusion आए तो मुझे पूछो. Let's start. And see this कि ये पूरे क्वेश्चन में कितनी चीजों के लिए इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट ढूंढनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटस्टैंडिंग होम लोन,
राइट, उसके लिए हमें प्रोविजन करना है. देन हायर एजुकेशन एक्सपेंस, राइट, वो भी रखा हुआ है. एडिशनली द क्लाइंट वांट्स हायर एजुकेशन for each of his children rupees 30 lakh after 15 years and marriage expenses 15 lakh after 20 years. तो ये ठीक है. उनके रिस्पेक्टिव एज वाला हमें नहीं दिया है, सीधा ही दिया है कि कितने साल के बाद हमें चाहिए. देन मैरिज एक्सपेंसेस का गोल दिया हुआ है और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का, राइट. सो इतनी चीजें हमें दी गई है. और हाउस होल्ड में करंट एंड स्पाउस का 55 के बाद. सो मेनली 4 चीजें हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है. फाइन. सो वन बाय वन शुरू करते हैं. आउटस्टैंडिंग लोन कितनी दी गई है? 25 लाख. सो टू कवर दी लोन 25 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए. करेक्ट. सेकंड, हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस. तो हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस कितने साल के बाद चाहिए? 15 years. 15 इयर्स. 2 बच्चों के लिए ना. तो अभी एक का अमाउंट कितना है? 15 lakh. थोड़ा 30 lakhs लिखा है इसमें. हाँ, each of the children rupees 30 lakh लिखा हुआ है after 15 years and that is given in which cost? current cost terms में दिया है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले PV is equal to 30 into 2 कर लेते हैं, तो 60 लाख. N कितने साल के बाद चाहिए हमें? 15 years. 15 years. अच्छा, इन्फ्लेशन रेट क्वेश्चन में कितना दिया है? 5%. So let us find out future value. कितनी आ रही है? 1,24,73,569. So this is the future value. मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ to ask the questions and complete it. Then this FV will still remain as FV. Now we have to find out कि like उनकी डेथ हो जाए unfortunately, तो कितनी अमाउंट आज उनके पास पैर में होनी चाहिए so that this goal can be met. So ये FV रहेगी. N is equal to 15. अच्छा, अब जो इंश्योरेंस का पैसा आएगा वो 8% रेट पे इन्वेस्ट होगा as suggested. तो I by Y is equal to 8 and let us find out PV. 39,32,189. 39,32,189. ठीक है. सो ये अमाउंट हमने मैच कर ली. सो दिस इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ बोथ द किड्स. तो इतना इंश्योरेंस तो उनको चाहिए टू मीट द एजुकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द किड्स. चलो, कंप्लीट इट एंड लेट मी नो इफ इट डजंट हैपन. ओके, नाउ नेक्स्ट जो गोल हमें दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज फॉर व्हिच एक्सपेंस? Marriage. मैरिज एक्सपेंस. ठीक है. तो मैरिज एक्सपेंस के लिए क्या बताया गया है हमें? इट इज 15 लाख आफ्टर 20 इयर्स. ठीक है. सो दैट मींस भले ही दोनों की एज अलग अलग है, दोनों की शादी तो सेम टाइम पे होने वाली है. फाइन. सेम मेथोडोलॉजी. सो नाउ PV इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 2. चलो सीधा ही 30 लाख में ले रहा हूँ, बस ईच है ना लिखा हुआ, सो मैं सीधा 30 लाख ही ले रहा हूँ. जैसे हमने आगे किया था वैसे ही करते हैं. एंड दैट इज आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 20 years. अरे हाँ सर, 20 years. 20 years. Okay. हाँ, after 20 years, right? So it is after 20 years. N is equal to, हमने ले लिया, इसको रब करो, इसको भी रब करके ठीक से लिखते हैं. It is 20 years. ठीक है. अब इसका इन्फ्लेशन कितना दिया हुआ है? 5%. And let us find out future value. 7959893. 79. 59893. Similarly, जैसे किया था वैसे ही, take this amount as FV. N is equal to 20. I by Y is equal to 8. And let us find out PV. So this PV will give us the amount to be provisioned for 2509290. सर ये मैच नहीं हो रहा. होना ही चाहिए. आप चेक करो. सर 17,07,780. आ गया. डन. सर रियल रेट लेके मैंने डायरेक्टली किया तो यही आया मेरे को. हाँ, आप रियल रेट से करो तो भी आ जाएगा, से भी नॉर्मली भी आ ही सर जाएगा. FV 7. Now last is for
हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब देखो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है। करंट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000। उसमें से 8,000 तो सेल्फ का है, सो दैट इज 42,000। वी आर ऑल्सो गिवन द EMI ऑफ 15,000। अब देखो मैंने लोन के लिए सेपरेट प्रोविजन कर दिया है, सो अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर में मुझे EMI के लिए प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। सो आई विल फर्दर सबट्रैक्ट 15,000 फ्रॉम दिस, तो बचा कितना? 27,000। सो दिस इज द एक्चुअली फैमिली एक्सपेंसेस। 15,000 हमने क्यों सबट्रैक्ट कर दिया? रीजन इज दैट कि हमने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन के लिए प्रोविजन कर लिया है, सो दिस 15,000 इज फर्दर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोविजनिंग। अब जो नेट बचा 27,000, दैट इज फॉर मीटिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि क्यों मैंने 15,000 भी सबट्रैक्ट कर दिया? क्लियर है सर। क्लियर है ना? दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन का, कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि 15,000 टू बी सबट्रैक्टेड और नॉट। फाइन, सो दिस पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से ओके। नाउ अंडरस्टैंड कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है 50,000, उसमें से पर्सनल एक्सपेंडिचर तो हमने हटा दिया बिकॉज़ दैट पर्सन इज नॉट। वो हाँ दैट आई अंडरस्टूड। 15 का 15,000 जो EMI दी गई है किस चीज की? लोन की। हाउस होल्ड, हाँ लोन लोन के लिए ऑलरेडी मैंने इंश्योरेंस का प्रोविजन तो कर ही दिया है। हम तो टोटल इंश्योरेंस कवर ढूंढ रहे हैं, उसमें 25 लाख का कवरेज चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अब फिर से 15,000 मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ओके You've already taken care of that expenditure. That means now we have to work on the net family expenses. So जो उनका घर खर्च है, household expense है, that is 27,000 only. अब उसके लिए भी इंटरेस्टिंग हमें टाइमलाइन दी है। Now look at it कि you additionally provide for 30 years living expenses after the spouse's age 55. अच्छा, तो स्पाउस की एज अभी कितनी है? हाउ ओल्ड इज शी राइट नाउ? 30 years. शी इज 30 30 इयर्स नाउ। years. ठीक है, तो हम 0 से लेके उनकी एज 55, दैट मींस हाउ मेनी इयर्स? 25. राइट, सो 25 इयर्स तक तो फुल एक्सपेंस चाहिए एज इट इज 27। 27, उसके बाद 60%. ठीक है, उसके बाद फर्दर हाउ मेनी इयर्स? 30 इयर्स। 30 साल का प्रोविजनिंग करना है ना, सो 30 इयर्स लिविंग एक्सपेंसेस आफ्टर 55 इयर्स एंड दैट इज 60% ऑफ द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये पूरी टाइमलाइन है। फॉर 25 इयर्स वी वांट फुल मनी and then 60% for 30 more years. Is this clear to us? Yes. हमारे लिए ये सॉल्व करना बहुत आसान। इट इज एज इजी एज क्रैकिंग नट बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्सास। ये टेक्सास का ही जादू है, देयर इज नथिंग एल्स। चलो, कैश फ्लो CF0 is equal to 27,000, बराबर। C1 is also equal to 27,000। अच्छा, 25 into 12 कितना होता है? 300। तो टोटल मुझे 27,000 कितनी बार चाहिए इन करंट टर्म्स ही हम रखे, तो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 300 टाइम्स। ऑलरेडी एक बार हमने ले लिया है, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 299। क्लियर? C2 इज इक्वल टू 27,000 का 60% एंड फ्रीक्वेंसी इज 30 इयर्स है ना, तो दैट इज 360। डन, हमारा पंचिंग हो गया। सो वी हैव सेट दिस डेटा इन कैलकुलेटर। अब NPV बटन हमें प्रेस करना है। लेट्स वी गो टू NPV, बट यहाँ पर जो आई होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी मंथली नॉमिनल रियल रेट, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट मेरी मंथली है एंड मंथली नॉमिनल रियल रेट हम 8 और 5 का ढूंढेंगे। राइट, hopefully I'm going right with rates today and let us find out NPV। ठीक है, do this, take time, शांति से करो। बताओ, चलो कितना? 7770135। 7777154। हाँ, चलेगा।
वो डेसिमल पॉइंट का है इश्यू, बट चलेगा. इट इज 77,70,000. करेक्ट, ऑल ऑफ अस, एकदम चकाचक. सर MNRR कितना है? MNR 2.8571. फिर से 2.8571. ओके. 2.85. 71. हाँ, ये 7. उसको मंथली नॉमिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर. अच्छा, तो ये तो आपका 0.2350. 2346. एंड 0.23. 0.35. 2350. Okay, so last step to conclude the question is कि अब हमें सब चीजों का टोटल करना है. So the first one with us was 25 lakh. ये हमारे लिए पहला था, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 और ये चौथा. दिस इज डायरेक्टली फोर्थ फॉर अस बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग टेक्सास, तो उनको लंबा करना पड़ा, हमने क्विकली कर दिया. ठीक है, सो टोटल मेरा कितना होगा वो आप मुझे बता. 1,59,09,972. हाँ. Yes, sir. Same. ठीक है, सेम ही आएगा. So this is the total insurance requirement. Now the question is very precise and it is asking us to find out additional cover. Right or not? It is asking us to find out additional cover. अब तो ये हमको पता है कि इसमें से सबट्रैक्ट क्या करेंगे, उनके पास कितना एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है. 48 lakh. नहीं, हाउ मच इज एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर? 40 lakh. Existing cover 48 lakh है ना सर? हाँ, सो 40 लाख का इंश्योरेंस कवर सबट्रैक्ट करेंगे एंड दे डू हैव फाइनेंशियल असेट्स ऑफ 15 लाख, तो उसको भी हम सबट्रैक्ट करेंगे एंड देन विल अराइव एट द एडिशनल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट. ट्रू? 1 crore 4 lakh 10,000. हाँ, चलेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम. Fine. So we are starting with sovereign gold bond scheme. Very, very important in our examination. पूछते ही है, कुछ ज्यादा ही पूछते हैं. Like so PPF हमारे एग्जाम के लिए as I said काफी important है. Similarly SGB is really important in our examination. We can say examiner को ये टॉपिक से बहुत प्यार है, ऐसे बताओ तो भी चलेगा, पूछते ही है इसको. Fine. So we start अंडरस्टैंडिंग द स्कीम. कुछ क्रिटिकल चीजें भी लेते हैं, प्रैक्टिकल इनपुट्स भी आप दीजिएगा एंड देन उसके जो न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं वो भी हम देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट हियर इज दैट एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट. द बॉन्ड्स अंडर दिस स्कीम मे बी हेल्ड बाय अ person resident in India, being an individual in his capacity such as individual or on behalf of minor child, jointly with any other individual. The bond may also be held by trust, HUF, charitable institution and university. Person resident in India is defined under section 2(5), जो हम यहाँ पर कौन से एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, इस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट यस इट इज फॉर इंडियन. अब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आया क्यों? बिकॉज इसके पहले की जो स्कीम थी दैट वाज नोन एज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. ये शायद आपने सुना होगा, वेर इन गवर्नमेंट ऑफर्ड कि जिनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, इट इज डेड गोल्ड एज सच, कि जो लॉकर में पड़ा हुआ है उसको वो गोल्ड गवर्नमेंट को दे दो एंड अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू give you some interest. But relinquishing the physical gold to get interest was not at all welcomed by people. लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं किया. मोनेटाइजेशन स्कीम में तो लाइक टेम्पल्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, सो जिनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड है. सो फ्रेंकली स्पीकिंग वो स्कीम कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही. द होल आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्कीम, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात करें,
या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करें, जो मेन आइडिया या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इट इज टू कर्ब द कंजम्पशन ऑफ फिजिकल गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इंडिया में एक्सप्लोर हम नहीं करते हैं, या माइंस भी यहाँ पर बहुत कम है. गोल्ड इज नॉट एक्सप्लोर्ड एज सच वी कैन से, बट गोल्ड माइनिंग यहाँ पर नहीं है. मोस्ट ऑफ द गोल्ड इज इम्पोर्टेड, या तो रिसाइकल्ड गोल्ड जो डोमेस्टिक है वो आता है यहाँ पर सप्लाई में, या तो इम्पोर्टेड गोल्ड आता है. एंड वी टॉक अबाउट, हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ये सीख भी चुके थे कि देयर इज ह्यूज कंजम्पशन ऑफ गोल्ड इन आवर कंट्री. We have had several years wherein the consumption exceeded 1,000 ton gold per annum. अब इतना ज़्यादा gold तो इंडिया में import करना पड़े तो it is a big burden on government, and that to the people buy it and just hold it in locker. So that is leakage in the financial system कि लोगों का पैसा रोटेट नहीं हो रहा है, वो सीधा इन्वेस्ट होके गोल्ड चला गया लॉकर में. So to curb that, they identified कि नहीं, अब हमें जिनके पास गोल्ड है वो वापस सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं है, वो तो होने नहीं वाला है. So they found a wonderful solution wherein they created a separate demand कि नहीं, लोगों को अब जो हो चुका है वो जाने दो, but now invite people to subscribe to this particular type of gold, which is not essentially a physical gold, it is a bond format gold. And इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया एंड सरप्राइजिंगली बहुत ही सक्सेसफुल हो गया. अच्छा भी कॉन्सेप्ट है, इन अ वे इट इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट कि समबडी बाइंग फिजिकल गोल्ड, उससे ये गोल्ड होल्ड करना बेटर है, बिकॉज लॉकर में पड़ा है, उससे अच्छा तो ये फॉर्मेट में खरीदना बेटर है. बट यस, दिस डजंट एंटाइटल अस फिजिकल गोल्ड. सो मुझे इनिशियली लग रहा था कि जो टेंजिबल गोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो रिप्लेस करना काफी डिफिकल्ट है, बट SGB somehow is able to do it. और ये अच्छा ही है कि लाइक लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल से अच्छा इसमें करे, तो इन अ वे दे आर सपोर्टिंग कंट्री आल्सो. सो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, ये सोवरेन है. सोवरेन मीन्स it is backed by central government, backed by a couple of powers of central government. First one is that tax collection, another is power to print currency. ये दो powers है, backed है, that means there won't be any default, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा. The bond shall be issued in the form of Government of India stock in accordance with Section 3 of the Government Securities Act 2006. The investors will be issued holding certificate. The bond shall be eligible for conversion into demat form. So if you are buying this, you can also hold it in demat form. Denomination, the bond shall be denominated in units of 1 gram of gold and multiples thereof. Minimum investment in the bond shall be 1 gram with a maximum limit of 4 kg for individual, 4 kg for HUF and 20 kg for trust and similar entities notified by government from time to time in one financial year. So हमारे लिए ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, because if they corner it, that is going to be helpful for us. तो इंडिविजुअली हमारे पास एक साल में 4 किलो गोल्ड खरीदने की लिमिट है. All the issues club together, पूरे साल में जितने भी ट्रांचेस उनके आ रहे हैं, all the tranches club together 4 किलो से ज्यादा गोल्ड हम नहीं खरीद सकते. पर पैन कार्ड ऐसे हम ले सकते हैं. So in case of joint holding, the above limit shall be applicable to the first applicant only. Annual ceiling will include bonds subscribed under different tranches during the initial issuance by government and those purchased from the secondary market. ठीक है, सो दोनों का हमें लिमिट दे दिया कि एक साल में आप 4 किलो से ज्यादा गोल्ड नहीं ले सकते हो. That's a big amount, but still they've kept a ceiling on it. The ceiling on investment will not include holding as a collateral by banks. Obviously, financial institutions which is keeping this thing as collateral and they seize it, उसके लिए नहीं है. But हमारे लिए, इंडिविजुअल के लिए 4 किलो लिमिट प्राइमरी इशुएंस प्लस सेकेंडरी मार्केट परचेजेस की है. सो सेकेंडरी मार्केट में से जितना भी उठाना है उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है. प्राइमरी प्लस सेकेंडरी बोथ क्लब टुगेदर इन अ ईयर वी कैन नॉट बाय बॉन्ड्स,
worth more than 4 kg. Clear? Individually. So, यहाँ तक clear SGB में? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now issue price. Like mostly हम सबको पता भी है, or probably many of us must be holding these bonds. So issue price is announced before the tranche opens. The nominal value of the bond shall be fixed in Indian rupees, fixed on the basis of simple average of closing price of gold of 999 purity established by Indian Bullion and Jeweler Association limited for the last 3 working days of the week preceding the subscription period. तो subscription period दिया उसके preceding week के last 3 working days की जो भी price थी gold की उसकी simple average हम लेते हैं. कौन सी price यहाँ पर track करते हैं? So published by Indian Bullion and Jeweler Association. That price we capture here. The issue price of gold bond will be 50 rupees less if you are subscribing in digital format. ठीक है. सो नॉर्मली हम तो डिजिटल मोड से ही पे करते हैं. सो फॉर अस इट इज 50 रुपीज लेस. करेक्ट. तो ये भी एग्जाम का पॉइंट है. दे आस्क दिस पॉइंट. सो हाउ इशू प्राइस वर्क्स, व्हाट इज द बेंचमार्क फॉर द प्राइस सेटलमेंट, और से प्राइस सेटिंग, नॉट सेटलमेंट, प्राइस सेटिंग, एंड देन देयर इज 50 रुपी डिस्काउंट इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू डिजिटल मोड. ट्रू? क्लियर यहां तक? इंटरेस्ट. Talking about interest, it is 2.5% on the nominal value. This is extremely important in examination because exam में आपको कैसे देते हैं? There is an SGB जिसका issue price आपको दिया होगा 5200, which is now trading in the market at 4700. हुआ ना? ये सबके SGB अभी यही प्राइस 47 4800 के आसपास चल रहे हैं. जिसने 5500 5600 के आसपास लिए SGB, मजे से लॉस करके बैठे, उनका पैसा कब रिकवर होगा वी डोंट नो. अब मैंने मार्केट से इसको परचेज किए, तो अब मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट क्या वैल्यू पे मिलेगा? विल इट बी पेड एट 4700 या 5200? टेल मी. 5200. यस, इट विल on 5200 because ये bond की face value हो गई. In a way, this is the face value या nominal value of the bond हो गई. Market price is the price at which you are purchasing, but this is the price at which they issued it. So interest is to be paid for on 5200. 2.5. Okay, 2.5%. It is fixed rate on the nominal value, and it shall be paid on half yearly basis. सर अभी इसमें 2.75 है. ना 2.5. लास्ट ट्रांच में तो 2.5 था. नो सर, 2.5 फिक्स. 2.5 फिक्स्ड है ना? करेक्ट. ठीक है. सो इट इज 2.5% फिक्स्ड. मुक्तिराज भाई, let us know if there are some changes. Okay, sir. On half yearly, जो भी इंटरेस्ट होगा वो हाफ ईयरली अकाउंट में क्रेडिट होता है. नाउ पेमेंट ऑप्शंस, ये याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में टैक्सेशन में भी SGB को मर्ज करते हैं. इन्वेस्टमेंट में तो करते ही है, बट टैक्सेशन में भी SGB को मर्ज करते हैं, बिकॉज इसमें जो इंटरेस्ट आता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट. और हमको ऐसा देते हैं, इनके पास इतने पैसे थे, अब मार्केट में से इतने SGB उठाए, तो उनका टैक्सेशन क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. चलो मूव फर्दर एंड लेट अस फाइंड आउट सम मोर थिंग्स. पेमेंट ऑप्शन. सो पेमेंट शैल बी एक्सेप्टेड इन इंडियन रुपीज थ्रू कैश अप टू अ लिमिट ऑफ 20,000. प्रॉब्ली ये चेंज हो गया है, तो हो भी सकता है, बिकॉज आई डोंट नो. ये 20,000 है. और डिमांड ड्राफ्ट्स और चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मोस्टली तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से ही परचेस कर लेते हैं. वेयर द पेमेंट इज मेड थ्रू चेक और डिमांड ड्राफ्ट, द सेम शैल बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ रिसीविंग ऑफिस. दैट इज मेंशन. रिडम्पशन, अब ये एक मजेदार चीज है इसकी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्ड इज हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ 8 years. Bond is having maturity of 8 years.
and premature redemption is permitted from 5th year of the date of issuance on the interest payment dates. Means if this is the bond 8 साल की मैच्योरिटी है, so premature 5 साल के बाद आप मैच्योर करने जा सकते हो, and first is at the end of 5th year, then after every 6 months, because 6 महीना क्यों बता रहा हूँ, because they are the interest payment dates, तो कभी भी नहीं. So first अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो 5 years के एंड पे, then 5.5 years, then 6 years, then 6.5 years, इस तरह से चलेगा. So that is how you can opt for premature redemption. 8 years is the final maturity, and premature redemption, that is at the end of 5th year. ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है. However, जब मैं premature redemption की बात कर रहा हूँ, I am actually asking government to pay my money back. However, during this period, bonds are traded in the stock market. Right? इसका ट्रेडिंग होता है मार्केट में. But yes, what has been identified in the stock market is कि ये बॉन्ड, नया बॉन्ड इशू हो रहा है, मान लो 5500 पे, you will find out SGB is available at what? 5000 around. SGBs are available at discount in the stock market. ऐसा क्यों सर? हाँ, अब यस सर, यस. प्रैक्टिकली भी देख लो, अभी भी उनका जो नया ट्रांच आ रहा है उसका इशू प्राइस देखो, और स्टॉक मार्केट में आप प्राइस देखो, काफी कम होता है. यस सर, बहुत कम है. बहुत कम है. और इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं भी काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे ये एक रीजन लग रहा है ऑफ दिस डिफरेंसेस कुड बी द लिक्विडिटी प्रीमियम. बिकॉज बॉन्ड मैंने आज खरीद तो लिए स्टॉक मार्केट से, बट उसका रिडम्पशन तो 5 साल के बाद ही है ना. उसका जो इशू डेट था उससे 5 साल के बाद रिडम्पशन है. सो मैंने ले लिया, फिर लिक्विडिटी नहीं रही मार्केट में, सो प्रॉब्ली माय मनी स्टक. So that liquidity premium is one of the reason due to which this is available at discount. That's what I can find out. But this is a huge discount, right? So ये भी एक concept है. If liquidity isn't an issue for you, तो 5500 face value वाले SGB आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मार्केट में मिल रहे हैं, तो यू कैन बाय इट. तो होगा क्या कि आपका इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ जाएगा ना, बिकॉज ऑल दी SGBs आर अवेलेबल ऑलमोस्ट एट अ कंपेरेबल प्राइस. यू विल सी दैट. यस सर. उतना डिफरेंस भी नहीं है कि 47 पे दूसरा 49 पे तीसरा 5000 पे, ऐसा नहीं है. दे आर ऑलमोस्ट इन अ प्रिसाइज रेंज. So you can think of buying the bonds. But सर अगर आज इशू प्राइस 5500 है and I am getting an option of let's say 4700, तो जो 4700 वाला है उसका तो फेस वैल्यू कम होगा ना उस टाइम पे जब इशू हुआ होगा. तो नहीं, इशू प्राइस जो नॉमिनल वैल्यू पे इशू हुआ था वही होगा, वो चेंज नहीं तो होगा. वो नॉमिनल वैल्यू उस टाइम पे, आज अगर 5500 पर इशू आज नया हो रहा है, तो जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसका इशू प्राइस मस्ट हैव बीन लिटिल लेसर ना, या मतलब इशू प्राइस तो प्राइमरी इशू में ही होता है, उसके बाद तो ट्रेडिंग प्राइस होती है. सो अभी जो मार्केट में SGBs अवेलेबल है उसका ट्रेडिंग प्राइस है. सो ट्रेडिंग प्राइस इज एट डिस्काउंट फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू. तो जिन लोगों ने अभी रिसेंटली SGB खरीदे हैं वो सब तो अभी फिलहाल लॉस में ही है, अच्छे खासे लॉस में है. कितने 20% लॉस में बैठे उनके कैपिटल के. मींस 2 लाख इन्वेस्ट किए है तो उनका ऑलरेडी 40-45 हजार तो डूब गया है, ऐसे समझ लो. पर अगर वो होल्ड करेंगे तो अब आगे देखते हैं. तो गोल्ड प्राइस के ऊपर वो रहेगा. हाँ, अब आगे देखते हैं. ठीक है. सो ये 8 इयर्स का हुआ, एंड द रिडम्पशन प्राइस शैल बी फिक्स्ड. अब देखो, रिडम्पशन प्राइस शैल बी फिक्स्ड in Indian rupees, and the redemption price shall be based on the simple average of closing price of 999 purity of the previous 3 working days published by the Indian Bullion Jewellers and Jewellers Association Limited. ठीक है. So अब इसमें unlike inflation bond आपकी nominal value protected नहीं है. Getting this? Unlike इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, उसमें क्या था कि 100 रुपए का बॉन्ड अगर मैंने खरीदा है तो इन्फ्लेशन मेरा नेगेटिव हो जाए तो भी रिडम्पशन पे तो मुझे और मैच्योरिटी पे तो 100 रुपए तो कम से कम मिलेंगे. दैट वाज प्रॉमिस्ड. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है.
It is purely and purely based on the gold price. Purely based on gold price. क्यों? यही तो एसजीबी का कॉन्सेप्ट है. इफ यू आर बाइंग फिजिकल गोल्ड एंड होल्डिंग इट, ठीक है, उससे अच्छा तो ये फॉर्मेट में बॉन्ड होल्ड करो, आप इंटरेस्ट भी कमाओ, और 8 साल के एंड पे अगर आपको गोल्ड की जरूरत है तो यू आर पेड इनफ मनी टू बाय द फिजिकल गोल्ड. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इफ यू वांट टू बाय फिजिकल गोल्ड आफ्टर 8 इयर्स, तो भाव कम है तो आपको कम मिलेगा, उससे उतना गोल्ड ले लो. भाव ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा. तो फिजिकल गोल्ड होल्डिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट हाँ, इफ आई एम अ प्योर गोल्ड इन्वेस्टर, तो मेरे लिए इसमें प्राइस रिस्क है. There is a price risk, and if I want to buy physical gold after certain years, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि like I buy the bond, इंटरेस्ट भी कमाओ, फिर उसके बाद मैच्योरिटी पे मुझे गोल्ड का प्राइस जो भी होगा मिल जाएगा. यूजिंग दैट आई विल बी बाइंग द गोल्ड. तो वो अच्छा प्रपोजल है. बट इफ आई एम एन इन्वेस्टर, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा पैसा इसमें लॉक हो रहा है, राइट. मार्केट में ट्रेडिंग होता है बट दैट इज एट डिस्काउंट, तो आई एम लूजिंग लॉट ऑफ मनी, right? So and at the end I would be paid what? The gold price. So according to me, gold ETF gives me a better investment proposition compared to SGB. So I too invested in SGB, I admit that, but later on I realized that this is still not the perfect idea if you are a gold investor. It is to curb the consumption of gold, कि जो लोग फिजिकल गोल्ड लेके लॉकर में डाल देते थे, कुछ करते नहीं थे, उनके लिए ये बेटर है. बट इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम गोल्ड प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, then ETFs are definitely better option than this, because there is liquidity is high. Liquidity is high. यहाँ पर और एक interesting part उन्होंने दिया, right? So it is like a cherry on the cake, which says that कि taxability, which makes this concept lucrative. वैसे देखो तो, but उतना भी ज़्यादा नहीं है. They have played a smart game. हम तो टैक्स जानते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि what they say is, so interest on gold bond is taxable as income from other source, and capital gain arising on redemption of SGB to an individual has been exempted. The indexation benefit will be provided to long-term capital gains arising to any person on transfer of this bond. अब यहाँ पर दो चीजें बताई गई है, redemption and transfer. Now what is redemption? मैं अगर गोल्ड मेरा बॉन्ड है वो बेचता हूँ, मतलब वो That is not redemption. Redemption, Maturity. I am giving this back to the government. हाँ हाँ वही. वो redemption हुआ. So और ट्रांसफर में डीमेट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन करता हूँ वो. So redemption is exempt from tax. Now what has been missing here is that early redemption also tax exempt? No. वो मैंने मेरे ये वाले स्टूडेंट्स को ही पूछा था. They said कि वो क्लैरिटी अभी नहीं है, as they said. क्लैरिटी नहीं है क्योंकि SGB is a recent concept. Let 5-year period get over, फिर taxability में क्या आता है we'll see at that time. But redemption नाम से तो 5 साल के बाद भी early redemption is redemption, तो redemption should be exempt from tax. उसमें उन्होंने ऐसे कहाँ बताया है कि they wanted कि 8 साल की मैच्योरिटी पे ही एग्जम्पशन देना चाहते थे, तो वो प्रिसाइसली लिखा होता था. नहीं सर, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने लिखा है कि टिल्ड होल्ड, ऐसा मतलब कि एग्जम्प्ट आप तभी होंगे अगर आप पूरे 8 साल तक होल्ड रखोगे, मतलब मैच्योरिटी तक होल्ड रखोगे, ऐसा शायद लिखा हुआ है. हाँ, वो आप ढूंढ के दो, बिकॉज ये मैंने आरबीआई की साइट से कॉपी किया है, कहीं से हाँ, कॉपी किया है. हाँ. सो विल सी टू इट. ये टैक्सेशन का इसमें गफला है. और एक पॉइंट भी है कि लाइक इंडेक्सेशन बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू एनी पर्सन ऑन ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स. अब ये ट्रांसफर की बात हुई तो दैट मींस आई एम ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, तो एक्सचेंज पे मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो आई विल बी एलिजिबल फॉर इंडेक्सेशन. अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है टैक्सेशन का कि इफ आई एम बाइंग बॉन्ड फ्रॉम द मार्केट एंड होल्डिंग इट अप टू मैच्योरिटी, तो मेरे लिए एग्जम्प्ट है या नहीं है. दैट इज वन मोर पॉइंट टू बी टेकन अप. राइट, सो काफी कुछ इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट है एसडीबी में. नहीं,
बट यस रिडम्पशन की बात करें एज दे सेड कि रिडम्पशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट फिर भी आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू have a lot of taxation on individual. Reason is that कि 8 साल का period, that means I am exactly capturing a particular cycle. Gold price आप देखिएगा, वो gold price cyclical होती है. So 8-10 साल के period में एक बार वो तेजी पकड़ती है. बाकी it is always like cool and calm ही price रहती है. No major movement. इसमें भी मुझे indexation benefit मिल रहा है. So let this be completely taxable. तो भी लाइक मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रखा, फिर उसको मैं इंडेक्सेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई वोंट बी हैविंग लॉट ऑफ कैपिटल गेन इन गोल्ड. समझो किसी ने 10 साल पहले लिया होता था और आज बेच रहा है, तो डू यू थिंक दैट ही विल एंड अप पेइंग mind-boggling टैक्सेस ऑन गोल्ड? नो, नहीं ना, क्योंकि इन्फ्लेशन तो है. तो ये उन्होंने अच्छा ही पॉइंट दे दिया कि लेट दिस बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. वैसे भी इसमें ज्यादा कोई टैक्स मिलने वाला है नहीं, तो let this be one of the very good selling proposition. So this is actually attracted people like anything that maturity पे कोई टैक्स नहीं है, right? और ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है. So this is the thing which has attracted too many people. और इसका record high selling day by day होते जा रहा है SGB का. Fine. So this is the concept of SGB. अब आपको इसमें जो भी confusions या practical inputs देने हो आप मुझे बताओ. The question is, you inform Roger and Angela about the recent vehicle of taking exposure to gold, which is sovereign gold bond. Which of the attributes about SGB is correct? कौन सा SGB के लिए correct है? That's what they are asking us to find out. The capital gain on redeeming these bonds on maturity are exempt from इनकम टैक्स, राइट? तो वो तो करेक्ट ही है एज दे सेड. और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, हाँ, सैंपल पेपर में से लिया हुआ है. दे वर्क लाइक जीरो कूपन बॉन्ड्स. नो, दे आरंट जीरो कूपन बॉन्ड्स, दे आर कूपन पेइंग बॉन्ड्स. द कोटेड प्राइस ऑफ एसजीबी करंटली आर वेरी क्लोज टू रूलिंग गोल्ड प्राइसेस. नो, वो पहले मैंने बताया कि द ट्रेडिंग प्राइसेस ऑफ एसजीबीज आर डिस्काउंटेड टू द नॉमिनल वैल्यू. ठीक है, सो ये डिस्काउंटेड प्राइस होती है. द रिडम्पशन प्राइस ऑन मैच्योरिटी इज गारंटेड नॉट टू बी बिलो द इश्यू प्राइस. दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड. दिस इजंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. करेक्ट? सो ए इज करेक्ट. सो यू कैन सी कि क्या लेवल पे हमें पूछ लेते हैं. सो एक छोटे छोटे पॉइंट भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम में. ट्रू?